very interesting point about the engineering that has been done by God of our foot, so that it becomes pliable, it becomes elastic, it takes the weight, it becomes propulsive. इन सब के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट लगाया गया है जो हमारे इंजीनियर्स लगाते हैं while making a bridge out of a stone. We don't find these bridges these days. It's called a bridge stone. Okay, so it's arched kind of a bridge, and our foot is also like that with arches. Okay, so what are the similarities that you see over here? One, very clearly, it is having many stones, so it's segmented. So हम लोग का foot भी है, it's made up of lots of bones, so it's segmented. So bridges are also segmented. Okay, but it's not just that there are stones, there are segments that have been put. The shape of the stones has to be very specific. Okay, so generally the shape is such that it is wedge shaped. Wedge means कि इसका जो ऊपर वाला part है, dorsal part, that is broad and the lower part is narrow, as you can see in the top bone. Okay, so it's almost wedge shaped. Okay, so it's segmented, wedge shaped and all that. But just putting a bridge stone, like if we are making a bridge, it has to take a lot of weight, just like our body is taking a lot of weight. The foot is taking a lot of weight of the body. The bridge also takes a lot of weight. So what do the engineers do? They do a few things which are very significant, which is done in our foot also. Okay, so again I will I'll make a mnemonic SIT. Sit. SITS. S is the shape. I just mentioned the shape. Okay. So it's just sits like you all are sitting. So the SITS, sits. All the students sits in these benches. Okay. So S is for shape. Okay. So what are the shape? Generally wedge shaped. So the bones is also, if you look very carefully, the bones of the feet. अगर ध्यान से कभी देखना तो all these tarsal bones that you see, they are all broad above and they are all narrow below, wedge shaped. है ना? So it's the engineering that's been done, the marvel of God, you can say, of the Almighty. Okay. Then there is I is for intersegmental tie. Intersegmental tie. There are many segments. You need to connect these segments. So there should be some kind of a connection between the segments. These are intersegmental ties, tying together, joining. Okay, and these are done by the ligaments. So all the bones are joined by small or long ligaments. So these are intersegmental ties. तो हर आर्च का हम लोग शेप की बात करेंगे, फिर क्या करेंगे? इंटरसेगमेंटल टाइज. ओके, वेरी सिंपल वर्ड. इफ यू हैव टू पेपर्स एंड यू हैव टू जॉइन दोस टू पेपर, व्हाट डू? You staple it. So these are also called staples, intersegmental ties or staples, joining the two bones. And what are these made up of? Ligaments. देखो, बनाने वाली चीजें जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? आप लोग बताओ. वी हैव द बोन्स. हम लोग किस चीज से ब्रिज बना रहे हैं अपनी बॉडी में? वी हैव द बोन्स. यस, वी हैव द लिगामेंट्स. वेरी गुड. वी हैव द मसल्स. We have the tendons of the muscles. Okay, and then you have also some thick fascia, like the plantar aponeurosis in the foot. All these, huh? So these are the raw materials. इसी से बनाएंगे ना. तो पहले तो bones थे, तो bones के shape जो थे वो wedge shaped थे. Then
joining the bone together by ligaments, which are the intersegmental ties. So the intersegmental ties are generally what? Examples are ligaments. Very good. Then you also want to ensure that both the ends, they are not separated. ऐसा नहीं कि खिंचा जाए और ये हो जाए. तो दोनों को तुम क्यों ना टाई कर दो. So why don't you tie the two ends? So we have, the engineers use this in the bridges. They connect. These are called tie beams. SIT, IT is for tie beam. Beams है जो tie कर रहा है ends को, tie beam. I love this whole thing. This very interesting how it has been made. अभी भी तुमको खुश नहीं है हम लोग, है ना? कहीं बहुत तेज आंधी तूफान आया और उड़ करके चला गया, सब कुछ उखड़ गया and all that. Just imagine like cyclone or a tsunami kind of a thing. So they need to hang something over here so that it doesn't fall. So ऊपर से भी हम एक beam डाल के hang कर रहे हैं. So it's forming a sling. Okay. So the S is for sling. So every arch, medial longitudinal arch, longitudinal and lateral longitudinal arch, mainly transverse में उतना हम लोग जोड़ नहीं देते हैं. Main arch ये दोनों हैं. We'll talk briefly about the transverse. We'll mainly talk about the medial and lateral longitudinal arch. Will be having the sit, the shape of the bone, okay, the intersegmental ties जो bone को connect कर रहा है, which is generally ligament, and the tie beams which are connecting the end and the sling which is going and keeping it from collapsing. अगर sling टूटेगा तो क्या होगा? Collapse हो जाएगा, है ना? So all this, now this was the ligament and these two are muscles and tendon and fascia. Tie beam और sling कौन बना रहा है? Muscle plus tendon of muscle plus fascia. Is that clear? So when we talk factors modifying the arch or factors which are strengthening the arch, ये लिखना होगा. तो तुमको ये चार ग्रुप में लिखना होगा. Okay? ठीक है? The shape of the bones, okay, the intersegmental ties which are ligaments, the name of the ligament you have to write, and tie beams and slings. Is that clear? Isn't this interesting? है ना? So let's come to the medial longitudinal arch. Okay. Another thing very important, the bone which is forming the summit, ये bone बहुत important होता है. It's called the keystone. Okay, the most important bone is the keystone, the one which is forming the summit. ठीक है? तो एक चीज अभी बता दे रहे हैं कि the keystone in the medial longitudinal arch is talus and in the lateral longitudinal arch is cuboid. नहीं, sorry, calcaneum. Okay. So here you have the, let's just talk about the medial longitudinal. So is the talus over here, the keystone. So let's write about the factors which are strengthening the medial longitudinal arch. So shape of the bone, it is wedge shape, but it is what is the main bone which is there? The talus, which is the keystone. The shape may you can write the talus, which is a wedge shaped bone, is the keystone. Is the which bone is a keystone. Okay. Then coming to the intersegmental ties. So you see the intersegmental ties over here. There is a very, very important ligament which is called the
calcaneo plantar calcaneo navicular ligament or the spring ligament. Okay, so this is joining the calcaneo navicular. किसको join कर रहा है? Calcaneum को navicular से. Okay, intersegmental tie बना रहा है. Okay, the calcaneum. So write down. Yeah, writing the medial longitudinal arch. Remember, हाँ, उसी को हम लोग continue कर रहे हैं. So the keystone was talus. Next, the intersegmental ties. This is by the spring ligament, but you have to write the complete name. Plantar calcaneo navicular ligament. Plantar calcaneo navicular ligament. Okay. Then there are small ligaments. लॉन्ग एंड शॉर्ट लिगामेंट जनरली लैटरल में तुम्हारे इसमें दिया हुआ है. इसमें जो लिगामेंट्स दिए हुए हैं जो बना रहे हैं टाइप बीम्स आर इंट्रोशियस लिगामेंट्स joining the bones. Introtious ligaments joining. This is tie beams are formed by small introtious ligaments जो join कर रहा है bones को. And one very important introtious talocalcaneal ligament. मेन talus और calcaneum को ज्वाइन कर रहा है. तीन याद रखना. सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग लिगामेंट एंड देन इंट्रोशियस talocalcaneal ligament and introtious ligament joining other bones. Okay, so these are the tie beams. Not tie beams, these are the intersegmental ties. Now tie beams. टाई बीम्स जो होता है ना, ये तुम्हारा एक तो हमेशा याद रखना. प्लीज लिसन ओवर हियर. सी, टाई बीम्स आर आई एम नॉट हैप्पी विद द पीपीटी एक्चुअली. हम तो आ गए वहां से अभी ये करके. मेरा पंच नहीं हुआ था. हाँ 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 कर लिए, जाके नीचे कर लिए. बोल देना अभी जाके करके आए. हाँ हाँ हो गया. उस समय भी हो गया. अभी अब फिर नहीं दिखा रहा है. मतलब वहां गलती है क्योंकि इसमें फोटो भी आ गया था, सुबह भी आ गया. So forget about the diagram. There is a fascia which is running from here to here. What is this called? अजी थोड़ा स्टॉल हुआ है ना, plantar fascia. Okay, so that is a tie beam. So there is a plantar fascia which is running from. तो ये tie beam दोनों आर्च का होता है. तो ये लिखोगे क्या? ये वाला है ना, medial half of the plantar aponeurosis. Medial half of the plantar aponeurosis. Tie beam is medial half of the plantar aponeurosis. And there is a very important muscle running from here to here to the big toe. कोई बता सकता है कौन सा है? यहाँ से लेके big toe तक. Who said abductor hallucis? You said? किसी ने बोला abductor hallucis? Yes, abductor hallucis is a very important muscle, not which is running from here to the big toe is hallucis. Okay, abductor hallucis. So the tie beam is the plantar aponeurosis, medial half of plantar aponeurosis, and abductor. तुम्हारे बुक में इसमें विश्राम सिंह में बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है abductor hallucis. Okay, there is also flexor hallucis brevis. तीसरा लिख सकते हो, but main दो important कौन सा है? plantar aponeurosis and abductor, not adductor, abductor hallucis. Okay, and not longest, abductor hallucis only, and flexor hallucis brevis. ये तीन है tie beam, but दो जरूर लिखना, plantar aponeurosis and abductor hallucis. Okay. Now the sling muscle, कौन बताएगा medially कौन सा मसल है जो sling बना रहा है? और tibialis anterior भी बना रहा है, tibialis posterior भी. देखो मैं इसमें बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखो तुम लोग. अच्छा है कम बच्चे हो ना तो ज्यादा मैं बता सकता हूँ.
Now this is, you can see over here there is a spring ligament was between which two bones? Calcaneo-navicular, है ना, यहाँ पर calcaneo-navicular था. Okay, so tibialis posterior will come down and goes deep to the spring ligament, and it goes like this. ऐसे करके ये अंदर चला जा रहा है. Tibialis posterior, so it's forming a sling. Okay, tibialis anterior आगे से आया तो वो भी यहाँ पर चला गया. So that is tibialis anterior. That's also forming a sling. But the most important muscle which is forming the sling is, yes, flexor hallucis longus is the strongest of the string. It is going behind the groove of the talus. Posterior groove of talus के पीछे जाता है. बुक में बहुत अच्छा दिया है विश्राम सिंह में. Posterior groove of the talus. Then it goes deep to the sustentaculum talli. ये sustentaculum talli है, इसके पीछे से flexor hallucis. And then it goes to the big toe. And it is called the, जैसे हम लोग का string beam होता है ना, जो यार bow and arrow, so the string वाला काम करता है. ये जो flexor hallucis longus है, it's acting like a string, it's acting like a string beam. Okay, it's going deep to the, ये लिख लो, flexor hallucis longus is the bulkiest muscle and the strongest sling of the medial longitudinal arch. Tibialis anterior भी है sling, tibialis posterior भी है, but सबसे strong sling कौन सा है? Flexor hallucis longus. Flexor hallucis longus is the strongest and the bulkiest muscle. It goes along the posterior groove of talus, supporting the talus. वो talus को पहले support कर रहा है, जब posterior groove of talus से जा रहा है तो talus को support कर रहा है. Then it is going beneath the sustentaculum talli of the calcaneum, so it's supporting the calcaneum also. Okay, and finally it's forming the bowstring. So तीन चीजें कर रहा है. Flexor hallucis longus कौन सी तीन चीजें कर रही हैं? Supporting the talus while it's going behind, along the posterior groove of the talus, supporting the calcaneum when it's going along the beneath the sustentaculum talli, ये जो shelf like projection है इसके नीचे जा रहा है, so supporting the calcaneum, and finally going and to the big toe, so it's forming the bowstring. So slings कौन से हो गए? तीन हो गए. Flexor hallucis longus, है ना, and tibialis anterior and tibialis posterior. Okay, so this is about the medial longitudinal arch. So sets में से shape क्या है? Which is the keystone? Talus. Intersegmental ties? Yes, spring ligament and interosseous ligament. Interosseous में एक लिख सकते हो, talocalcaneal ligament. Okay. Tie beam, aponeurosis, medial half of the plantar aponeurosis, and abductor hallucis. Very good. Flexor hallucis brevis भी है, अगर याद होगा तो लिख लेना. Abductor hallucis and sling. दो tibialis तो हैं ही, tibialis anterior posterior, but main कौन सा है? Flexor hallucis longus. I really actually जो एग्जाम्स हुआ और बहुत चीजें हुई, बहुत सारा सोशल कमिटमेंट भी था, तो मैं कुछ डायग्राम्स अगर डाल दिया होता तो बहुत क्लियर हो जाता कैसे स्लिंग बना रहा है. इस पीपीटी में मुझे दिख तो नहीं रहा है अच्छा सा, बट क्या देखिए क्या हो गया. हाँ, you can see the tendon of flexor hallucis longus. देखो कितना अच्छा दिखाया है. Tendon of flexor hallucis longus going along the posterior groove of talus, supporting this, going below the sustentaculum talli, supporting this, and going forming the bowstring. Okay.
again the tendon of flexor hallucis is longest. Now coming to the lateral longitudinal arch very quickly now. What are the bones forming? पहले हम लोग अपना bones forming और ESPN कर दे. Bones forming, fourth and fifth metatarsal, cuboid, calcaneum. Okay, cuboid, calcaneum, fourth and fifth metatarsal. Now ESPN ends, anterior ends, head of the fourth and fifth metatarsal. अब आसान हो जाएगा है ना? Head of the fourth and fifth metatarsal. Posterior end, posterior tubercle. वहाँ पर medial tubercle of calcaneum था, यहाँ पर posterior tubercle of calcaneum. Is it clear? Posterior tubercle of calcaneum. Then pillars, anterior pillar, shaft. Shaft of the fourth and fifth metatarsal. Posterior pillar, lateral half of calcaneum. Pillars जो बनाते हैं posterior pillar calcaneum बना रहा है, medial half और इधर lateral half of calcaneum. Okay. Joint is calcaneo-cuboid. यहाँ पर CC joint है, calcaneo-cuboid joint. Okay. So very quickly, bones forming यहाँ पर क्या हो जाएगा? The fourth and fifth metatarsal, the calcaneum and the cuboid. Okay. Then तुम्हारा end, anterior end, shaft हो गया, वहाँ पर shaft था, नहीं anterior end sorry, head था, head of the metatarsal first three था, यहाँ पर fourth and fifth का head हो गया. Posterior end, medial tubercle था, यहाँ posterior tubercle हो गया, है ना? Summit, summit is formed by over here by the, yeah, it's actually the calcaneal angle of the cuboid. It's the calcaneum that's forming the summit. Yes, calcaneum is forming the summit. Okay, superior surface of the calcaneum. So यहाँ पर superior surface of calcaneum हो जाएगा. Okay. Then pillars, anterior pillar is formed by shaft of the fourth and fifth metatarsal. Posterior is by the lateral half of the calcaneum. Name of the joint, calcaneo-cuboid. So आप लोग ना बिल्कुल एक ढंग से लिखिएगा इसे, ठीक है? Now let's come to the factors which are modifying or strengthening the medial lateral longitudinal arch, ESPN वाला. तो उसमें सबसे पहले ESPN के पहले भी हमने क्या कहा था? सॉरी ESPN तो ये था, सिट्स के पहले हमने एक और क्या बोला था? शॉर्ट था ना? हाँ, रॉ मटेरियल्स हमने बताए थे. ओके, लेट्स कम टू द सेट्स वाला. ओके, हाँ, तो समिट कौन सा बना रहा है? कैल्केनियम. व्हाट इज द शेप ऑफ द बोन? जो हम लोग कहे थे शेप ऑफ द बोन. तो यहाँ पर जो क्यूबॉइड बोन है और कैल्केनियम है ना, तो जो क्यूबॉइड है उसमें एक कैल्केनियल एंगल ऑफ द क्यूबॉइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख देना. शेप ऑफ द बोन में कैल्केनियल एंगल ऑफ द क्यूबॉइड में एक एंगल बना हुआ है जिसमें कैल्केनियम फिक्स हो जाता है. So that shape is helping to strengthen the joint. So calcaneal angle is not given in your book, but calcaneal angle of the cuboid. Calcaneal angle of the cuboid. Ligaments. Not ligaments, intersegmental ties. इंटरसेगमेंटल टाइप में लिगामेंट्स आ जाता है. तो यहाँ पर जो लिगामेंट्स हैं वो हैं शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट. ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट. ओके, देन आफ्टर दैट टाई बीम. वहाँ क्या था? प्लांटर एपिन्यूरोसिस मीडियल हाफ, यहाँ पर प्लांटर एपिन्यूरोसिस लैटरल हाफ. वहाँ पर कुछ मसल्स थे बिग टो के, यहाँ पर मसल्स इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लिटिल टो हो जाएगा. इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लिटिल टो, जिसमें क्या लिखोगे? वहाँ पर एब्डक्टर
पॉलिसिस था, यहाँ पर हो जाएगा एबडक्टर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। ओके, एबडक्टर वहाँ भी था, यहाँ भी है, वहाँ एबडक्टर हॉलिसिस था, बट यहाँ पर एबडक्टर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। ठीक है, तो दिस इज द टाई बीम। तो टाई बीम इज वन इज प्लांटर एपोन्यूरोसिस lateral half, another is abductor digiti minimi brevis. Is it clear? Then वहाँ पर एक फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस हमने बोला था, तो यहाँ पर भी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, काफी मिलता जुलता है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। So these are the tie beam. Okay. Sling muscles. Sling muscle देखो, जो पेरोनियल मसल्स आते हैं ना वो लैटरली जाते हैं, तो वो लैटरल स्लिंग्स बनाएंगे, है ना। tibialis एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल स्लिंग के लिए है, along with flexor हॉलिसिस लॉन्गस मेन वाला, ये तीन मीडियल स्लिंग था। लैटरल स्लिंग कौन बनाएगा? तीनों पेरोनियस। कौन कौन से? पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस एंड पेरोनियस टर्शियस। क्या हुआ काजल? ठीक है, पेरोनियस लॉन्गस ब्रेविस एंड टर्शियस। तो हो गया, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च भी हो गया। बहुत क्विकली एक बार रिवाइज कर लें ESPN से। एंड्स ऑफ द बोन, ends of the bone, head of fourth and fifth metatarsals, and पीछे posterior end is posterior tubercle of calcaneum. Okay. Then ends के बाद S, summit, superior surface of the calcaneum. Yes, calcaneum is good enough. Superior surface of calcaneum. Okay. Then pillars, again anterior posterior. E और P में anterior posterior दोनों लिखना है, ends and pillars में। तो anterior pillar, shaft of fourth and fifth metatarsals. Posterior pillar, lateral half of calcaneum. Okay. Then joint, calcaneo-cuboid joint. Okay. Then coming to stitch. Factors that are strengthening. S, shape, the calcaneal angle of the cuboid, okay, and intersegmental ties, short and देख के नहीं बोलना, याद करके बोलो, short and long plantar ligament, okay, then tie beam, lateral half of plantar aponeurosis and the intrinsic muscles of little toe। अगर इतना लिखोगे ठीक है, अगर पूरा लिखोगे तो नाम भी लिख दोगे तो अच्छा है। एबडक्टर एंड फ्लेक्सर रहता है, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, वहां ब्रेविस नहीं था, वहां फ्लेक्सर में ब्रेविस था, बस यहाँ एबडक्टर में भी एबडक्टर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। ओके, और फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस भी है, बट छोड़ सकते हो, वो भी है तीसरा। अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, तीसरा है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। तो एनीवे ये हो गया। एंड स्लिंग्स तो तुम लोगों को पता है, उधर कौन से थे? tibialis एंटीरियर पोस्टीरियर एंड फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस। यहाँ पर कौन सा है? पेरोनियस लॉन्गस ब्रेविस एंड टर्शियस। ओके, तो ट्रांसवर्स आर्च में आने के पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। वेलकम टू द ट्रांस। अब तुम लोग का जल्दी जल्दी होगा, बिकॉज ट्रांसवर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ क्लिनिकल के हैं बहुत, वो मैं कर लूँगा। Posterior end is lateral tubercle of calcaneum। हमने posterior बोला था, नहीं lateral tubercle, सॉरी lateral medial tubercle, medial में, ends में हमने गलत शायद बोल दिया था, ends में medial tubercle है इधर और lateral tubercle है lateral arch में। एक चीज बस दिक्कत है, एक चीज बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो which book are you using, the विश्राम सिंह में इन लोग ने पिलर्स नहीं दिए, एंड या एंड्स नहीं दिए, हाँ एंड्स नहीं दिए, एक कर दिया है, बट हम जो कह रहे हैं वो बेटर है। तो विश्राम सिंह को छोड़ के पीके सिंह को फॉलो करना है यहाँ पर, है ना। और कोई कहेगा तो मुझे बुला लेना कि सर बताए थे, आई विल स्टैंड बाय यू, ठीक है। वहाँ एंड्स नहीं दिए, सही कहते हो।
क्यूबॉइड को ना, हाँ, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में कीस्टोन इज नॉट इज क्यूबॉइड, नॉट कैल्केनियम, ठीक है, समिट इज कैल्केनियम बट कीस्टोन इज क्यूबॉइड। थैंक्स, मैं मिस कर गया था, कीस्टोन इज क्यूबॉइड। इज दैट क्लियर? So we are coming to the transverse arch after 5 minutes. एक चीज जरूर है कि बहुत अटेंडेंस शॉर्ट है, बट जो भी है ना बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक तो है, जिसको मन है उसी को तो पढ़ाना चाहिए। मतलब तुम लोग आ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तुम लोग ये नहीं कि जाना है कर रहे हो, तो दैट इज रियली नाइस। भले तुम लोग का मन होगा जाने का, बट एटलीस्ट बहुत पेशेंटली बैठे हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विकली एंड आई लीव यू पीपल। क्यों हंस रही हो? कह रही हो कि नहीं सर मुझे तो, मेरा तो हालत खराब हो गया, मुझे जाना है। एक था, आई डोंट रिमेम्बर द लाइन, एक कवि था, एक कोई शॉर्ट हास्य कविता था, उसका लाइन मुझे याद नहीं आ रहा, पर कुछ ऐसे ही था, इस तरह से था कि 3 घंटे से जो कवि है वो अपने फ्रेंड को कह रहा है कि 3 घंटे से तुम्हें कविताएं सुना रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, पान खा रहा हूँ। 3 घंटे से तुम्हें कविताएं सुना रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, पान खा रहा हूँ। इतना मजेदार है ये हंसी मजाक का सिलसिला, इतना वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। तो उसका दोस्त बोला, मेरे दोस्त, मेरे यार, कभी मेरी राय भी पूछ लिया करो मेरे यार। तो वही हाल है, करे सर कभी हमसे भी पूछ लीजिए, आपको लग रहा है हम लोग कितना टॉर्चर्ड हो रहे हैं यहाँ पर। आई नो, बट द फैक्ट इज कि सर का था, आई वॉज नॉट इन द फेवर कि आज ये क्लास हो, बट बॉस वांटेड कि आज खत्म कर देना है, तो मैंने ले लिया। मुझे लग रहा था एग्जाम के बाद होना चाहिए था ये। क्या पता, आई हैव नॉट सीन द क्वेश्चन, मैंने देखा नहीं है, नहीं तो मैं जरूर थोड़ा सा हिंट दे देता तुम लोग को, अगर मुझे कुछ भी आइडिया रहता तो। बट तुम लोग एग्जाम के लिए देखो, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम के लिए फुट मत पढ़ना, सोल मत पढ़ना, ठीक है? आई थिंक एंकल तक भी नहीं आना चाहिए, आई थिंक एंकल का आई डोंट नो, बट फुट तो नहीं आएगा, ठीक है? और ये सब पढ़ लेना, एडक्टर कैनाल, फीमरल ट्रायंगल, पॉप्लिटियल फॉसा, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, लॉकिंग अनलॉकिंग, हिप एंड नी तो जरूर पढ़ लेना, जरूर एक आने का चांस है। फीमरल ट्रायंगल, एडक्टर कैनाल, पॉप्लिटियल फॉसा रहता ही रहता है कहीं ना कहीं। सियाटिक नर्व पढ़ लेना, आई डोंट नो द क्वेश्चन बट आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल। कॉमन पेरोनियल अलग से पढ़ लेना और टीबियल पढ़ लेना, सियाटिक नर्व पढ़ लेना, फीमरल आर्टरी पढ़ लेना, प्रोफंडा ब्रेकाई पढ़ लेना, है ना? स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस देख लेना। और क्या है तुम लोग का लोअर लिम्ब है सिर्फ, की और भी है? अपर लिम्ब में तो बता ही दिया था इंपॉर्टेंट, अरे तुम लोग को दिया था ना उस ग्रुप में एक बार। सोल नहीं पढ़ना, फुट मत पढ़ना, फुट नहीं आएगा। आर्चेस भी मत पढ़ना। अब ये बताना मना था, बट मैं थोड़ा, तुम लोग आए हो तो मैं बता दे रहा हूँ, जो नहीं आए उनको मत बताना, बल्कि बोलना सर कह रहे थे आर्चेस तो आने की पूरी चांस है, ठीक है? कि अच्छा तुम लोग नहीं गए, सर ने बताया और ये आने वाला है पक्का, कुछ तो फायदा होना चाहिए जो आ रहे हैं अटेंड कर रहे हैं। और जब वो रूम में आए ना तो जल्दी से आर्चेस पढ़ने लगना, ऐसे ऐसे करके, आर्चेस आर्चेस आर्चेस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल, ये तो आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। फिर जाएंगे तो बंद करके दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। आई थिंक फुट नहीं है तो एंकल, बट एंकल का आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक नहीं रहना चाहिए। नी एंड हिप जॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 प्रोफेसर पढ़ाए हैं, एक सर पढ़ाए हैं हमारे एचओडी सर, रिस्पेक्टेड एचओडी सर, एक मैंने पढ़ाया, तो नी और ये तो आने का पूरा चांस है। और शॉर्ट नोट में ट्रायंगल्स और एडक्टर और ये सब वो सब आ सकता है। बहुत लंबा है बेटा, उसमें तो वही सब पूछते हैं, पता नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स सेकेंडरी एंड ऑल दोज एंड
ठीक है, I'll just finish off the transverse arch in 5 minutes and I'll let you people, you have another class from 12, I don't know किसका है. Transverse arch में there are two types of arches, okay, anterior and posterior. So you have to write that anterior is complete, okay, and posterior is formed by the union of the two arches. Okay, transverse arches are less important. So we have two transverse arches, anterior and posterior, okay, and anterior one is arch जो ऐसे बन रहा है ना, so what are the ends of the anterior? बताओ. Heads of first and fifth, है ना, ये ऐसे है. ट्रांसवर्स आर्च यहाँ पर बन रहा है, heads of the first and fifth. ठीक है, ये फर्स्ट है, मान लो ये फर्स्ट है, ये फिफ्थ है. तो एंड, अब तुम ऐसे आर्च ऐसे नहीं देखना है, तुम्हें ऐसे देखना है, साइड वाइज. ठीक है, तो फर्स्ट और फिफ्थ आर्च आर द एंड. So you write anterior transverse arch is complete. It is formed by the first and head of the first and fifth metatarsal. Is it clear? इतना ही लिखना है. Second arch, posterior transverse arch. This is incomplete and this is formed by the metatarsal and carpals. ये लिखोगे बस. ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से है, देखो. सेकेंड आर्च ऐसे है, बस आधा है, दूसरे साइड का मिला के पूरा हो जाएगा. तो ये कौन बना रहा है? मेटाटार्सल एंड कार्पल्स. नाम नहीं लिखना है. तो इट्स फॉर्म्ड बाय द मेटाटार्सल एंड कार्पल्स. मेटाटार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स एंड द टार्सस. Okay, is it clear? So I repeat, anterior transverse arch is complete. It's formed by head of first and fifth metatarsals. Okay, posterior transverse arch is incomplete and it is formed by metatarsals and tarsus. Is it clear? अब इसमें पूरे ट्रांसवर्स आर्च एक मान करके इसका तुमको ES, तुमको ये लिखना है. द एंड्स तो छोड़ दो, यू राइट द शेप. हाँ, द शेप. So you just write the shape of the bones of the tarsus and are wedge shaped. Okay, without naming, they are all wedge shaped, so it's helping to form the perfect design. Okay, the wedge shaped. Then I में आओ, intersegmental ties. Intersegmental ties. अब तुम इंटरसेगमेंटल टाइज अगर देखोगे ना, तो तुमको थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन बदल देना है. अब तुमको इस तरह से हॉरिजॉन्टली कनेक्टिंग कुछ लिगामेंट चाहिए. अभी तक लॉन्गिट्यूडनली कनेक्टिंग लिगामेंट थे, है ना. अब हॉरिजॉन्टली चाहिए. तो हॉरिजॉन्टली कनेक्टिंग लिगामेंट जो होता है, एक यहाँ पर होता है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट और डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट. तो ये सब ऐसे रन करता है. सुपरफिशियल ट्रांसवर्स, नाम ही है ट्रांसवर्स, मेटाटार्सल लिगामेंट नियर द हेड ऑफ द मेटाटार्सल एंड डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट नीचे की तरफ डीप में, है ना. तो दीज आर व्हाट इंटरसेगमेंटल ties. Plus, what is the muscle which is joining the metatarsals? कौन सा मसल है? Interossei. The dorsal interossei muscles, not palmar, but the dorsal interossei muscles are also intersegmental ties. Okay, तो ये तीन लिख देना. Intersegmental, transverse metatarsals, superficial and deep, दो हो गए, and dorsal interossei muscles. They are intersegmental ties. टाई बीम, देखो टाई बीम को क्या कनेक्ट कर रहा था? एंड्स को कर रहा था ना. इज इट क्लियर? तो लॉन्गिट्यूडनल था, लॉन्गिट्यूडनल आर्च में. इसमें हॉरिजॉन्टली जा रहा है. तो कोई ऐसा मसल बताओ जो ऊपर से आ रहा है और ठीक है स्लिंग भी बना रहा है, बट ये ऐसे चला जा रहा है, जो टाई बीम बना देगा. पेरोनियस लॉन्गस, इसीलिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया. देखो पेरोनियस
Fibularis means peroneus, huh? Fibularis longus and peroneus longus are same. Are going, it's going and it's going inside. Okay? देख रहे हो अंदर जा रहा है, तो ये टाई बीम हो गया ना, एंड्स को कनेक्ट कर रहा है. ओके? तो तुमको ध्यान देना. इसी तरह एक यहाँ पर भी मसल है जो आ रहा है, एक तो साइड में हो जा रहा है, एक अंदर जा रहा है. कौन सा है? मीडियली. tibialis posterior. ठीक है, तो थिंक ऑफ इट कि कौन हॉरिजॉन्टली जाएगा अंदर जाके, मसल है ना, वो टाई बीम हो जाएगा. वहां पर एपोन्यूरोसिस था टाई बीम, यहाँ पर मसल है. तो tibialis posterior एंड पेरोनियस लॉन्गस. तो रटोगे तो दिक्कत होगा, बट अगर तुमको याद है कि पेरोनियस लॉन्गस इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि पेरोनियस लॉन्गस इज गोइंग, तो इज फॉर्मिंग अ टाई बीम. Is it clear? Similarly, tibialis anterior will form a tie beam. It will come थोड़ा सा अंदर आता है ना. Tibialis posterior will come inside, so it's forming a tie beam. Okay, नीचे में. ठीक है. स्लिंग वो वाले मसल हैं जो आ रहे हैं बट वो अंदर नहीं जा रहे हैं. तो क्या बच गया? मीडियल साइड में tibialis anterior हो गया और लैटरल साइड में बाकी पेरोनियस है जो कि फिफ्थ मेटाटार्सल में एंड हो जा रहा है. tibialis peroneus brevis and peroneus tertius, है ना. ये स्लिंग बनाएगा लैटरली और मीडियली कौन बनाएगा? tibialis anterior, क्योंकि वो भी अंदर नहीं जा रहा है, वो टाई बीम नहीं बना रहा, वो स्लिंग बनाएगा. ठीक है, तो याद करोगे तो भूल जाओगे और समझोगे तो याद रहेगा. मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. ओके, ट्रांसवर्स आर्चेस anterior complete formed by first and fifth metatarsal head, posterior incomplete formed by the metatarsus and the tarsus. Okay, the shape, bed-shaped bones, so that's fitting well. Then intersegmental ties, superficial and deep transverse metatarsal ligaments in the interossei, dorsal interossei. Okay, then tie beam. Peroneus longus is coming from laterally and going, and tibialis posterior. Okay, they are tie beam. And sling, peroneus brevis and tertius laterally and tibialis anterior medially. ठीक है, तो ये sling हो गया. So this is about the transverse arches. This arch is like this. What happens if the arch collapses? Despite everything, it becomes flat foot, जिसे हम कहते हैं pes cavus और flat foot. Not pes cavus, sorry, pes planus. Plane हो गया ना, cavus नहीं. Pes प्लेनस, अगर वो कोलैप्स करेगा तो प्लेन हो जाएगा. तो इट्स कॉल्ड पेस प्लेनस. ओके, और फ्लैट फुट. क्यों होगा? किसे होगा, तुम्हें या मुझे? नहीं, दुआ नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये मत करो कि भाई मुझे क्यों, आपको होगा. मतलब किसे होने का चांस ज्यादा है? स्टैंडिंग पोजीशन में हम हैं, तो स्टैंडिंग पोजीशन में अगर होते हैं तो क्या होता है? नहीं, थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं. There was a spring ligament, है ना. What was the full name of spring ligament? Calcaneonavicular ligament. So that becomes weak and that can break. There is a plantar aponeurosis. जो बना रहा था, क्या बना रहा था? टाई बीम. That can become lax, तो फ्लैट हो जाएगा. अगर फ्लैट होगा तो स्प्रिंग लिगामेंट क्या कर रहा था? हेड ऑफ द टैलस को नीचे आने से रोक रहा था. यहाँ पर स्प्रिंग लिगामेंट हेड ऑफ द टैलस को रोक रहा था. जैसे स्प्रिंग लिगामेंट टूटेगा तो हेड ऑफ द टैलस विल कम बिटवीन द कैल्केनियम एंड द नेविकुलस. तो ये सब साइंटिफिक चीजें थोड़ा सा जान लेना है. ठीक है, ठीक है. देयर इज अ स्प्रिंग लिगामेंट व्हिच इज रनिंग लाइक दिस एंड प्रिवेंटिंग द हेड फ्रॉम कमिंग बिटवीन द कैल्केनियम एंड नेविकुलर. So when this because of prolonged standing, if this breaks, spring ligament, then the head will then become flat foot or pes planus. Okay, so this will come down. Okay, and
It will come down between which two bones? Calcaneum and navicular. Okay. This is and another thing that is spring ligament के अलावा plantar aponeurosis. If this becomes relaxed, खड़े खड़े होकर के बहुत लूज हो जाए तो फिर फ्लैट फुट हो जाएगा. फ्लैट फुट होगा तो हम लोग का जो स्प्रिंग मूवमेंट है वो हट जाएगा और हम लोग का बहुत ही शफलिंग गेट हो जाता है, शफलिंग गेट. और क्या क्या होगा, जो जो तुम फंक्शन बता रहे थे कि नर्व को बचाता है ये होने से, डैमेज होने से, तो नर्व्स विल बी रब्ड. नर्व्स विल बी रब्ड, तो देयर इज अ मीडियल प्लांटर नर्व, लैटरल प्लांटर नर्व, और उनको कनेक्ट करता है एक कनेक्टिंग नर्व है, वो जनरली डैमेज हो जाता है. नर्व कनेक्टिंग द मीडियल लैटरल प्लांटर नर्व, तो उसकी वजह से तुमको पेन होगा बहुत ज्यादा. उसको कहते हैं मेटाटार्सैल्जिया, मेटाटार्सैल्जिया. तो ये याद रखना, शफलिंग गेट, मेटाटार्सैल्जिया, बिकॉज ऑफ द पेस्ट प्लेनस. क्यों हो रहा है? क्योंकि नर्व नीचे दब रहा है. नर्व दब रहा है तो तुमको दर्द हो रहा है इन द फोर्थ फुट. फोर्थ फुट मतलब कि मेटाटार्सल एंड फेलिंजेस. हाइंड फुट मतलब कि टैलस एंड कैल्केनियन, और जितने भी टार्सस हैं वो हैं मिड फुट. ठीक है, ये बोलना भूल गया था. पीछे वाले दो जो हैं टैलस कैल्केनियम इज हाइंड फुट, टार्सस इज मिड फुट एंड फोर्थ फुट. तो फोर्थ फुट में पेन होता है पेस्ट प्लेनस में, शफलिंग गेट होता है और मेटाटार्सैल्जिया होता है क्योंकि नर्व कंप्रेस हो रहा है. ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा पेस्ट प्लेनस का? पेस्ट केवस, कनकेविटी बढ़ गया फ्लैट होने की जगह. क्यों बढ़ेगा? ये जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस है वो कंट्रैक्चर हो गया, वो लूज होने की जगह वहां पर इन्फ्लेमेशन होकर कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा. तो पेस्ट केवस, इज दैट क्लियर? बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्चर ऑफ द प्लांटर एपोन्यूरोसिस. ओके, एक क्लब फुट होता है. ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, बस 2 मिनट दे दो, इतनी देर से तो प्लीज रिक्वेस्ट है. क्लब फुट में देखो दो तीन चीजें हो सकती हैं. क्लब फुट में आइदर द प्लांटर फ्लेक्स होगा जब तुम टो में चलोगे, जैसे तुम लोग हील्स पहन करके चलते हो ना, इस तरह से, इस तरह से, तो उस तरह से. तो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट. ओके, द हील इज रेज्ड एंड द टो इज डाउनवर्ड. ओके, द पर्सन वॉक्स ऑन द टोज. दिस इज कॉल्ड टैलिपस इक्विनस. इक्विनस मीन्स हॉर्स ऐसे चलता है, कौन सा जानवर चलता है? हाँ, तो टैलिपस इक्विनस कहते हैं. क्लब फुट 2-3 तरह के होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ. क्लब फुट टैलिपस इक्विनस. इक्विनस मीन्स टो में चल रहा है, प्लांटर फ्लेक्स है. हाँ, ऐसे चलेगा जैसे, हाँ, बैले डांसर, बहुत अच्छा बोली, बैले डांसर जैसे चलती है. टैलिपस इक्विनस. उसका उल्टा क्या होगा? हील में चल रहा है, टैलिपस कैल्केनियस. टैलिपस कैल्केनियस. टैलिपस वेरस. वेरस में क्या होता है कि फुट इन्वर्टेड हो जाता है. इन्वर्जन ऐसे हो जाएगा, जैसे तुम्हारा ये है ना लेफ्ट लेग का, तो इन्वर्टेड हो जाएगा, तो वो लैटरल बॉर्डर में चलेगा ऐसे. ठीक है, लैटरल बॉर्डर में. दिस इज टैलिपस वेरस. तो इसमें क्या हो रहा है? द पेशेंट इज वॉकिंग इन द लैटरल बॉर्डर, द फुट इज इन्वर्टेड है ना, ऐसे है, इन्वर्टेड हो गया, फुट इन्वर्टेड हो गया. इन्वर्टेड एंड एडक्शन, दो चीज साथ साथ होता है, इन्वर्जन एंड एडक्शन. तो लिख लो एक बार शॉर्ट में. टैलिपस वेरस में इन्वर्जन ऑफ द फुट, inversion and adduction. Patient walks in lateral border. Talipus valgus में opposite होता है. Talipus valgus, eversion and abduction. ठीक है, तो इसमें कौन से बॉर्डर में चलेगा? मीडियल बॉर्डर में चलेगा और ऐसे रहेगा. मैं चल नहीं पा रहा हूँ, भगवान हमको ठीक रखे, सुरक्षित रखे. ठीक है, तो वो मीडियल बॉर्डर में चलेगा और क्या होगा? अबडक्शन एंड इवर्जन. इज इट क्लियर?
और एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन लास्ट, टैलिपस इक्विनोवेरस। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ क्लब फुट है, टैलिपस इक्विनोवेरस। तो इक्विनो हो गया मतलब क्या है, टो में चल रहा है, और वेरस हो गया तो क्या है, लैटरल बॉर्डर में चल रहा है, इन्वर्जन और एडक्शन है ना। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन हो गया तो टैलिपस इक्विनोवेरस। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बियरिंग विथ मी, एंड देयर आर फ्यू अदर जो तुम लोग को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, हैमर फुट और ये सब 2-3 है वो हम भेज देंगे। हाँ, बट ये पेस केवस, पेस प्लेनस और ये टैलिपस के 5 वेराइटी तुम लोग को जाना। थैंक यू। ऑल्सो रिमेंबर द लॉकिंग अनलॉकिंग जो हमने शुरू में बताया था, है ना। लॉकिंग में कौन सा मूवमेंट हुआ था फीमर का, MRF, मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर लास्ट 30 डिग्री, ओके। और अनलॉकिंग में lateral rotation during flexion done by popliteus of femur in fixed leg, in opposite हो जाएगा when it's off the foot. Thank you very much. हाँ, एक बात बताएं बेटा, एग्जाम इज अ लॉटरी। आई बीन टीचिंग फॉर मोर देन 20 years, हो सकता है एक भी नहीं आए, तो अवॉइड दैट। हम यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम में डाल देंगे, अभी इतना कम है, सब पढ़ो, नहीं अच्छा हो रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी हमने कुछ कुछ बताया ना, वो सब ध्यान दे दो, लिख के नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही ये हो जाएगा कि एक प्रोफेसर ने लिख के दिया, उसमें से कुछ भी नहीं आया, हो सकता है उसमें से सब आ जाए। तो why take a risk? When I am not your teacher, then I can tell you very easily, but now I am your teacher, so that's not very good to be indulging in such kind of habit, and I should not give you that habit कि it's not a buffet कि choose कर करके सब पढ़ो, जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ो, don't take it too seriously, जितना लिख सकते हो लिखो, but it's not the end of the, don't take it too lightly, I should say that। आधे बच्चे तो आते नहीं एग्जाम देने, मैं तो भूल ही गया था, ये तो लाइटली लेने वाला बैच है। आई एम श्योर तुम लोग सब आए होगे जिस तरह सिंसियर लग रहे हैं। यू आर द गुड पीपल। आई विल टेक अ सेल्फी विथ यू ऑल वन डे सो दैट आई रिमेंबर